students, the next topic of class 10th physics, that is of chapter light, reflection and refraction, is mirror formula. Okay, now what this mirror formula is? This mirror formula is simply the relation between object distance, image distance and focal length of a spherical mirror. Okay, so here this mirror formula is a relation between object distance, image distance and focal length of spherical mirror. Okay, now what this mirror formula is? This mirror formula is simply 1 upon V plus 1 by U is equals to 1 by F. अब यहाँ पर ये जो V है ये क्या होता है? That is image distance from pole of the mirror. And what about this U? This U is object distance from pole of the mirror. मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है दोनों हम कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम पोल टू दैट पर्टिकुलर आइदर ऑब्जेक्ट और इमेज. एंड दिस एफ इज सिंपली द फोकल लेंथ. Okay, now this mirror formula we can also write it as 1 by V plus 1 by U is equals to 2 by R. Now why we can write it this in way? Because we have F is equals to R by 2. F is focal length and R is radius of curvature. मतलब हमारे पास F और R में भी रिलेशन है. तो यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में डायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला भी वहां पर यूज कर सकते हो. ओके, नाउ हियर टू अंडरस्टैंड दिस मिरर फॉर्मूला लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर अ कॉन्केव मिरर. हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है एंड फॉर दैट कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट, let's take it as numerical. Object is placed at a distance of 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the image distance formed by mirror. मतलब वहां पर हमारे पास क्या है कि एक कॉन्केव मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. कितने डिस्टेंस पर? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर. और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? Focal length of the mirror is 15 centimeter. What we have to calculate? We have to calculate image distance. So first of all, in such kind of numericals, we will write the given conditions. That जो given values है उनको हम लिखेंगे. So first of all, what is given? The given thing is at a distance of 25 centimeter. It is an object. And object distance is represented by U. U is equals to 25 centimeter. But now here we have to use sign convention. अब यहाँ पर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखते हैं जहां से लाइट रे इंसिडेंट होती है एंड वी आर मेजरिंग डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इट विल बी नेगेटिव. U इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर. ओके, नाउ देन फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. F इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. एंड विच मिरर वी हैव? कॉन्केव मिरर. नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर? फोकल लेंथ या पहले कहते हैं अपन जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहां पर लाई करता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और वो जो लेंथ है फ्रॉम पोल हम कहां से मेजर करते हैं? वी आर मेजरिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. मतलब यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस. सो हियर वी कैन यूज मिरर फॉर्मूला. यूजिंग मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1 by V plus 1 by U is equals to 1 by F. Okay, now here we can write 1 by V is equals to 1 by F minus 1 by U.
So we have to find value of v. V is equals to 1 by f. F is minus 15 minus 1 by u is minus 25. Okay, so here 1 by v is equals to, I can write it as minus 1 by 15. This minus minus plus, so it is plus 1 by 25. Okay, so here we will take LCM, that is 75. Okay, here it is minus 5 plus 3. So I can write 1 by v is equals to minus 2 by 75. But here v is not equals to minus 2 by 75 because it is in denominator. So what we can write, we will multiply this 2 here, v with minus 2 and 75 here. So I can write that 75 by minus 2 is equals to v, or v is equals to minus 75 by 2 centimeter. So this is the image distance. Image distance कितनी आ गई? Minus 75 by 2 centimeter. Now here negative sign. What does this negative sign represents? अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? दैट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और अगर कोई भी इमेज मिरर के सामने बन रही हो, in that case what we can say, that particular image is real and inverted. That's why we can write the image formed is real and inverted. Why? Because it is formed in front of the mirror. After the mirror formula, we have one more formula that is called as the magnification. Okay, now we will see what actually the magnification is. So the next topic is magnification. Okay, what this magnification is? This magnification is simply the ratio of height of the image to the height of the object. Okay, this is represented by m. So this magnification m is equals to height of image upon height of object. So this m is equals to height of image. Height of image is always represented by h2 and height of object is always represented by h1. So this h2 by h1 is called as magnification. Now you can see here that we are comparing this height of image with the height of ऑब्जेक्ट. मतलब वो इमेज कितनी मैग्नीफाइड है, या तो वो ऑब्जेक्ट हमको ज्यादा बड़ी दिखेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, या फिर उसकी साइज से थोड़ा सा कम दिखेगी. दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. ओके, सो m इज इक्वल्स टू h2 by h1. ओके, नाउ हियर we have some important cases of magnification. Okay, let us see here case first. If image is magnified और enlarged, अगर हमारे पास कोई बड़ी इमेज बनी, मतलब जो इमेज की जो हाइट है वो ज्यादा रहेगी किससे? एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब यहां लिख सकते हैं दैट हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज की हाइट ज्यादा रहेगी ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो मैं लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज दैट इज h2, मतलब h2 इज ग्रेटर देन h1. अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू h2 by h1. अगर यहाँ पर न्यूमरेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डिनोमिनेटर, सपोज इट इज 5 एंड इट इज 2, देन द रिजल्टेंट विल बी 2.5. अगर ये 4 है, ये 2 है, तो क्या होगा? 2. मतलब यहाँ पर हमेशा जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी ग्रेटर देन 1. इसका मतलब अगर कहीं पर भी आप कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 1, देन व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट the image formed is enlarged or magnified. Okay, that is what the meaning of m greater than 1 is. Okay, now here the next case second, we can take if image is smaller as compared to object. मतलब जो इमेज है वो क्या बनी? स्मॉलर बनी. उस केस में क्या होगा? Here we can say that the height of image is less than height of object. मतलब यहाँ पर h2 is less than h1. तो यहाँ पर देखो कि अगर h2 कम है, h1 ज्यादा है, मतलब suppose it is 2 and in denominator it is 10,
सो दैट विल बी 0.2। मतलब इस केस में हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 से कम होगा। अगर इमेज छोटी बन रही है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन मैग्निफिकेशन विल बी ऑलवेज लेस देन 1, बट इफ द इमेज फॉर्म्ड इज greater or enlarged as compared to that of object, then we can say its magnification will be always greater than 1. Okay, now let us take case third. Case third, if size of object is same, size of image is same as size of ऑब्जेक्ट, या फिर दोनों की हाइट क्या है, सेम है। मतलब लिख सकते हैं h2 किसके बराबर है, h1 के बराबर है। m इज इक्वल्स टू h2 बाय h1, दोनों बराबर है, मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर कभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों बराबर हो जाए तब वहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हमने रे डायग्राम में देखा था फॉर कॉन्केव मिरर्स कि एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी थी जहां पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, सेम थी। कहां पर, when the object was placed at center of curvature, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस था तो वहां पर उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, नाउ दिस वी हैव सीन द 3 केसेस विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट्स। ओके, नाउ विल टेक केस 4, इफ इमेज इज रियल। अगर हमारे पास जो इमेज बनी वो क्या बनी है, रियल इमेज, मीन्स where the light rays actually meet at a particular point after reflection, या फिर जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, in front of the mirror। in that case हम जानते हैं कि a real image is always inverted। एक रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। अपने पास मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू h2 बाय h1, h2 इज हाइट ऑफ द इमेज, और अगर वो इमेज इन्वर्टेड बन रही है मतलब कहां बन रही है, दैट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हाइट हम मेजर करते हैं दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। एंड व्हाट अबाउट द h1, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब यहां पर ये मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब आपके पास कभी भी मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वहां पर आपको समझ जाना पड़ेगा कि वहां पर वो जो इमेज फॉर्म्ड है दैट इमेज फॉर्म्ड इज real and inverted. This type of questions you can face in MCQs. Okay, अब ये तो किसके लिए था हमारे पास, if the image is real, and case 5th, if image is virtual। अगर इमेज वर्चुअल है तो वहां पर क्या होगा, जैसे रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन दैट इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या है, h2 बाय h1, हाइट ऑफ इमेज दैट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सपोज फॉर एग्जांपल if I have given m is equals to +2, what conclusions you can draw from this statement? अगर क्वेश्चन है क्या है, if m is equals to +2, write the conclusions you can draw from this expression m is equals to +2। अब यहाँ पर देखिए पहले 2 that is greater than 1, और जहां पर भी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा वहां पर क्या होगी, that image is मैग्निफाइड। ये हमने अभी देखा था इससे पहले कि जब भी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तो इमेज क्या होगी, मैग्निफाइड होगी। नाउ व्हाट डज दिस प्लस मीन्स, प्लस का मतलब क्या है, हियर पॉजिटिव मीन्स द हाइट ऑफ इमेज, और यू कैन से द साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये प्लस है इसका मतलब ये क्या है, दिस इज वर्चुअल, एंड अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। So these conclusions you can draw from this statement m is equals to +2. Okay, now here we have seen this magnification formula in terms of height of object and image. अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि this magnification is equals to h2 by h1 and that is equals to minus v by u.
ये क्लास 12th में इसका एक्चुअल डेरिवेशन होता है, यहाँ पर आपके पास सीधे फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है आपकी क्लास में। सो m is equals to h2 by h1, this formula is with respect to their height and this formula is with respect to their image and object distance। यहाँ पर v क्या होता है, this v is the image distance and u is the object distance। ओके, अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन अभी हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये हमेशा आपको देखना है सिर्फ इस रेशियो से, द रेशियो ऑफ h2 by h1। यू डोंट हैव टू सी दिस रेशियो व्हाइल राइटिंग द sign of magnification, means the sign of magnification is always considered from the ratio of the height of the image and the object and not from their respective distances। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपको ये नहीं देखना है, कौन सा फॉर्मूला देखना है, ये देखना है। ओके, बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन।